Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am here with you with lecture number 7, and today we are going to discuss the text of King Lear. And like we discussed in our earlier lectures, that we have been talking about Shakespeare's tragedies and how he has been able to have a person, the antagonist in his tragedies is a very noble person. He is from a higher strata of the society, and then there are elements, his own hamartia, his own problems, and his own misjudgment, you can say, and his own concept of what is right and what is wrong affects him. Then external circumstances affect him, the working of evil, the working of supernatural, and all these things carry on, and they make him do things which he has not been able to comprehend earlier. So here with Shakespeare's King Lear, आपको थोड़ा सा याद होगा कि हमारी स्टोरी इस तरह से थी कि King Lear is dividing his kingdom in his 3 daughters among them, and he asked them that a very small question, that how much do you love me. तो वो उसकी जो बेटियां हैं वो उसको फ्लैटर करती हैं और बहुत बहुत बड़े बड़े टॉल क्लेम्स उसको देती हैं कि वी लव यू दिस मच एंड दिस मच. सो उसी के हिसाब से किंग लियर जो है वो उनको अपनी किंगडम डिवाइड करता है. But when it is Cordelia's, turn, so she is very confused, and she says that I love you as my bond with you, and it cannot be compared to anything. So he gets confused, and he says that misjudge करता है उसकी honesty को, उसकी Cordelia की integrity को वो misjudge करता है, और इसी तरह से वो ये समझता है कि वो उसको लव नहीं करती, हालांकि शी इज़ दी ओनली डॉटर हु इज़ नॉट वेरी मच कीन ऑन द किंगडम, और वो प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए कीन नहीं थी, और उसके अंदर ग्रीड बिल्कुल भी नहीं था. तो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट विद शेक्सपियर किंग लियर एक्ट 1. Scene 1, King Lear's palace. Enter Kent, Gloucester and Edmund. Okay, so these are the people entering with him, and inshallah जब हम इसकी DVD देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से इसकी व्यू मिलेगी. Kent, I thought the king had more affected the Duke of Albany and Cornwall. So he has also invited the Duke of Albany and Cornwall. Gloucester says, it did always seem so to us, but now, in the division of the kingdom, it appears not which of the dukes he values most. For equalities are so weighed that curiosity in neither can make choice or of either's moiety. You would notice in Shakespeare's plays and dramas that they are very, very poetically done. So curiosity and moiety, so these words rhyming together, so poetic touch uske andar bahut zyada hai. And here Gloucester is saying that we don't know which of the dukes he values most, Duke of Albany or Cornwall. इन दोनों में से ड्यूक कौन से ड्यूक को किंग लेयर जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है, बिकॉज आई एम क्यूरियस एंड आई डोंट नो व्हाट टू से. सो ही हैज़ दिस आइडिया दैट इन दोनों ड्यूक में से किसी एक को वो कॉर्डेलिया के लिए चूज़ करेगा. सो लेट्स सी. Kent says, is not this your son, my lord? So again Kent sees somebody passing by, और वो कहता है कि is this your son? Gloucester says, his breeding, sir, had been at my charge. I have so often blushed to acknowledge him that now I am braced to it. He says that, yes, I'm sorry,
he is my son, बट उसके कुछ एक्शंस इस तरह के हैं कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि ये मेरा बेटा है, और ही इज़, आई एम ब्लश्ड टू एक्नॉलेज हिम. ही सेज दैट आई थिंक कि ये जो मेरा बेटा है इस तरह का नहीं है जैसा कि मैं चाहता था हो. So Kent, I cannot conceive you. He says, I don't understand. Why are you saying this? If he is your son, then why are you ashamed of him? So Gloucester says, Sir, this young fellow's mother could, whereupon she grew round-wombed and had indeed, sir, a son for her cradle ere she had a husband for her bed. Do you smell a fault? Now, here you would see that Shakespeare really highlights illicit or illegal relationships, और उनका जो बैडनेस है वो फोर फ्रंट पे लेकर आता है. और प्रॉबेबली सोसाइटी का ये कुछ थोड़ा सा फ्लॉ था उस टाइम पे कि पीपल वर नॉट फेथफुल टू ईच अदर. So and then there was a lot of prostitution going on at that time. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस होती हैं. Very open, Shakespeare is very open about these things. और थोड़ा सा ये यही चीज़ एलिज़ाबेथन टाइम के नेगेटिविटी में जाती है कि ये इस तरह से चीज़ों को पोर्ट्रे करते थे. So he says that the son is not of good breeding. So Kent says, I cannot wish the fault undone, the issue of it being so proper. He said that you cannot undo it. Now he is your son. बड़ी बहुत ही उसने देखे बड़ी sensible सी बात की है कि now that he is your son, you must acknowledge him and you should be able to breed him in such a manner which is proper. So एक अगर आपसे कोई मिस्टेक या कोई ऐसी चीज़ हो गई है तो उसको ओवरकम इस तरह किया जाता है कि उस फॉल्ट को दूर किया जाए और उस प्रॉब्लम को हैंडल किया जाए. So Kent here gives him a very good advice. Now let me tell you कि ये थोड़ा सा जो इसमें हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. कुछ पोर्शंस हैं जिनमें के थोड़े से एक्सट्रैक्ट जो है वो मैंने छोड़ दिए हैं बिकॉज आई वुड वांट यू टू रीड देम ऑन योर ओन एंड डू गेट अ कॉपी ऑफ किंग लियर ऑन योर ओन, और उसको देखें, उसको पढ़ें और मेरे साथ इसको शेयर करें ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि मेरे लेक्चर्स और आपने जो पढ़ा है वो टैली कर जाए और हम लोग जो हैं वो वी शुड बी ऑन द सेम पेज. So Gloucester says, but I have, sir, a son by order of law, some year elder than this, who yet is no dearer in my account, though this knave came something saucily into the world before he was sent for, yet was his mother fair. There was good sport at his making, and the whoreson must be acknowledged. Do you know this noble gentleman, Edmund? So he says that I have another son, and if this is also my son, I think I should acknowledge him. So Gloucester जो है वो उसकी बात समझ जाता है और वो कहता है कि okay fine, well while I was with his mother, so I should acknowledge this son also. Edmund, no, my lord. Gloucester, my lord of Kent, remember him hereafter as my honorable friend. So you see, शेक्सपियर की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी आर्केक है, थोड़ी सी क्लासिकल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इसको कहेंगे. और अगर आप किंग लियर की कोई क्रिटिकल स्टडी ख़रीदते हैं तो उसमें वो बहुत इजीली मिल जाती हैं. यू कैन बाय देम फ्रॉम एनी बुक शॉप या ओल्ड बुक शॉप से भी आपको ये बहुत इजीली अवेलेबल होंगी. एंड दे आर लो प्राइस्ड एडिशंस, तो वो इतने महंगे भी नहीं होते.
सो यू कैन ईजीली बाय देम. तो क्रिटिकल स्टडीज़ जो है वो एक लेफ्ट साइड पे आपको टेक्स्ट मिलेगा एंड राइट साइड पे उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. सो दैट विल बी नाइस फॉर यू कि आपको एडेड जो है वो सपोर्ट मिल जाएगी कि ड्रामे को समझने में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट इट इज़ अबाउट, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द कैरेक्टर स्केचेस, you will be able to get the questions जो यूनिवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो उनकी प्रेपरेशन में आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी. सो क्रिटिकल स्टडीज़ आर यूज़फुल बट योर ओन स्टडी उसको बिल्कुल ना छोड़िएगा. और क्रिटिकल स्टडीज़ में जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो बहुत छोटे हैं. सो एग्जामिनेशन में आपको इतने छोटे आंसर्स नहीं आप दे सकते और आपको उसको बढ़ाना होता है. सो बी वेरी केयरफुल एंड यू शुड बी एबल टू कोट फ्रॉम द टेक्स्ट इन योर यू नो, जैसे आप ग्लॉसेस्टर का कैरेक्टर स्केच लिख रहे हैं तो उसने क्या बात कही है वो कोटेशन आप ज़रूर डालेंगे. सो उसको कोट करना भी जो है वो ज़रूरी है लिटरेचर के कोई भी पेपर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए. सेम इज़ द केस विद पोइट्री. पोइट्री में भी आप इसको वो करेंगे, कोटेशंस देंगे और ड्रामा में भी कोटेशंस आप देंगे. सो एडमंड सेज माय सर्विसेज टू योर लॉर्डशिप that I am here to serve you. Kent says, I must love you and sue to know you better. Kent says that I must come closer to you and I should, learn to know you better. Edmund says, sir, I shall study deserving. He says that I will, be very honored and I will be deserving that you pay so much of attention to me. So the way of saying things ज़रा different है और बड़ा interesting है. Gloucester, he hath been out 9 years and away he shall again. The king is coming. So he says that my son has been out for 9 years and he will be going again. And then in the next sentence he says, the king is coming. Senate, enter King Lear, Cornwall, Albany, Goneril, Regan, Cordelia and attendants. Okay, so ये सारे लोग इकट्ठे स्टेज पे आते हैं. They give an entrance. So उनकी एंट्री जो है वो बड़ी ड्रामेटिक, बड़ी अमेजिंग है. Goneril, Regan and Cordelia are his daughters. So King Lear, attend the lords of France and Burgundy, Gloucester. So he says to Gloucester that go and attend the lords of France and Burgundy. So Gloucester says, I shall, my liege, or your highness जिस तरह हम कहते हैं उस ज़माने में my liege, meaning के I will be able to give my life for you also. So it's one a kind of a salutation for the king. So he says, I shall, my liege, I will go and take care of France, lords of France and Burgundy. Accent Gloucester and Edmund, वो दोनों चले जाते हैं. So King Lear's speech here. Meantime, we shall express our darker purpose. Give me the map there. Know that we have divided in 3 our kingdom, and 'tis our fast intent to shake all cares and businesses from our age. He says that I have become old and now I want to rest and have a peaceful time, and I have ruled for a long time. So I am dividing my kingdom into 3 of my daughters, and now they will look for it and look after it and look after my kingdom. Conferring them on younger strength, he says that as I have become old, I am giving it to younger strength. So when a person is young and vibrant and full of life, वो ज़्यादा बेहतर समझ सकता है, वो ज़्यादा एक्टिवली अपनी जो किंगडम है उसकी केयर कर सकता है. So he says that I have become old and now I will pass on the kingship to my daughters, and they should, as they are young,
and very, very vibrant and very enthusiastic, they will be able to run the kingdom in a better manner. While we unburdeneth crawl towards death. He says, I will be unburdened. ठीक है, so मेरे burdens सारे उतर जाएंगे और मैं बड़ा free होके I will go towards my death. See, the wording crawl towards death, it means के old age में आप बहुत तेज नहीं भाग सकते. So very effective analogies, crawling and unburdeneth, and conferring them to younger strength, meaning his daughters. So see, शेक्सपियर की वर्डिंग्स बड़ी अच्छी हैं और अपना एक यूनिक स्टाइल है इसका. Our son of Cornwall and you are no less loving son of Albany. We have this hour a constant will be publish our daughters several dowers, that future strife may be prevented now. He says that I am giving you this decision, that I am giving these things as my daughter's dowry. उनके डाउरी की सूरत में मैं उनको ये सारी की सारी जो किंगडम है वो डिवाइड कर रहा हूँ, and so that they can rule and they can enjoy themselves. The Prince France and Burgundy, great rivals in our youngest daughter's love, long in our court have made their amorous sojourn, and here are to be answered. Tell me, my daughters, since now we will divest us both of rule. So he says that princes of France and Burgundy have wanted my youngest daughter's hand for so long, and now the time has come to decide and to give away the dowry or deserving dowry of my daughters. Tell me, my daughters, since now we will divest us both of rule, interest of territory, cares of state, which of you shall we say doth love us most? So this line very important, और ये आपको कोट भी करनी चाहिए जब आप अपने क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होंगे. He says that I will ask one small question from you, which is, which of you shall we say doth love us most? That we our largest bounty may extend. ये we जो है ये रॉयल we है, ठीक है, वो अपने आप को कह रहा है कि so that I should be able to give the largest bounty. जो बेटी भी मुझे सबसे ज़्यादा मेरे से प्यार करती होगी उसको मैं लार्जेस्ट किंगडम का हिस्सा दूंगा. सो सी किंग लियर्स फ्रेल काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ लव. ये लव इतनी छोटी सी चीज़ नहीं होती जो ऐसी डिस्क्राइब हो जाए. लव आपका टेस्ट होता है जब आपको प्रॉब्लम में आप किसी को टेस्ट करते हैं और आप देखते हैं कि उस इंडिविजुअल का, उस बेटे या बेटी का लव आपके लिए कितना है जब आप किसी ट्रबल में हो और वो आगे आए, सामने आए, अपना सब कुछ छोड़ के वो आपके लिए टाइम निकाले, बॉदर करे आपके लिए और आपकी केयर करे. सो वेरी मिसजजमेंट यहाँ से किंग लियर की स्टार्ट हो गई. दैट वी आर लार्जेस्ट बाउंटी में एक्सटेंड. ये देखिए यहाँ से ये वर्डिंग्स जो हैं कि हु लव्स मी मोस्ट, उसको मैं सबसे ज़्यादा जायदाद दे दूँगा. तो बहुत ही फ्रिवलस, वेरी शैलो आई वुड से इन हिज जजमेंट. किंग लियर जो है वो वाइज नहीं है बिल्कुल भी, और उसका जो स्पर ऑफ द मोमेंट के ऊपर उसके जो विम्स हैं, विम्सिकल है, बड़ा मूडी इंडिविजुअल है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसको एंड तक बहुत उसके लिए ट्रबल क्रिएट करेंगी. वेयर नेचर डथ with merit challenge Goneril,
our eldest born speak first. He says कि Goneril, you are the eldest, so you speak first. और आप मुझे बताएं कि आप मुझे कितना लव करती हैं. So imagine a father asking a daughter this, and a daughter also replying in a very materialistic manner कि ठीक है, अगर मेरे फादर को यही सुनना है तो फिर मैं बहुत बड़े बड़े क्लेम्स, टॉल क्लेम्स करती हूँ कि मैं अपने फादर को इतना लव करती हूँ. वो भी उसको समझ जाती हैं और वो जवाब इस तरह से देती है. Goneril the eldest says, Sir, I love you more than words can wield the matter. He says कि अल्फाज से ज़्यादा मैं आपसे आपके क्लोज हूँ. Dearer than eyesight, space and liberty, beyond what can be valued, rich or rare. ठीक है? She says that you are dearer than my eyesight. अब ये जो उसने कंपैरिजन किया है eyesight का, ये बहुत बड़ा है कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी की अगर आइज़ ना हो, ब्लाइंड हो, तो दुनिया उसके लिए बिल्कुल अंधेरा हो जाती है, बिल्कुल डार्कनेस हो जाती है. और ऑल ऑफ अ सडन जैसे अभी हम अपनी आंखें बंद करें तो हमें एक घबराहट सी होती है, प्रॉब्लम सी होती है कि एकदम से आप आंखें खोलना चाहते हैं और चीज़ों को, दुनिया को देखना चाहते हैं. तो इसी तरह से कहती है कि यू नो, मोर देन आई साइट, स्पेस एंड लिबर्टी, माई ओन फ्रीडम, मेरी मूवमेंट जैसे मैं करती हूँ, जो कुछ भी मैं करती हूँ और जितना कुछ मैं देख सकती हूँ, उन सब चीज़ों से ज़्यादा मैं आपसे लव करती हूँ. बियॉन्ड व्हाट कैन बी वैल्यूड, रिच और रेयर. सो शी सेज दैट बेशक रेयर हो, बेशक रिच हो, जो भी चीज़ है, आई साइट से ज़्यादा, मेरी अपनी फ्रीडम, लिबर्टी से ज़्यादा मैं आपको लव करती हूँ. नो लेस देन लाइफ विद ग्रेस, हेल्थ, ब्यूटी, ऑनर. She says it's not less than life, and grace, health, beauty, honor, इन सब से ज़्यादा मैं आपसे लव करती हूँ. ये सारी चीज़ें खो जाएं, and if I have you, then I will be the happiest person. Now you see, a lot of flattery is there, buttering is there. अपने फादर को वो बटर कर रही है ताकि उसको लार्जेस्ट किंगडम का पोर्शन मिल जाए. As much as child ever loved or father found, a love that makes breath poor and speech unable, beyond all manners of so much I love you. So this is what Goneril says. ये देखें, आई साइट से कंपेयर किया, स्पेस, लिबर्टी, वैल्यूबल रिचेस, लाइफ, ग्रेस, हेल्थ, ब्यूटी, हर चीज़ मैं आपके लव पे कुर्बान कर दूं. मैं अपना ऑनर आपके लिए मैं दे सकती हूँ. एंड एज मच एज एवर ए चाइल्ड लव्ड फादर, a love that makes breath poor and speech unable. She says that I love you so much that I cannot even breathe properly and I cannot speak properly. So my love for you is so intense, so vibrant, and so consuming that I am unable to breathe without you and I am unable to speak without you. और अब ये सारा आपको फ्लैटरी नज़र आ रही है. कॉर्डेलिया इन एन असाइड, साइट पे होके वो ज़रा सा बात अपने आप से बात कर रही है. दीज आर नोन एज soliloquies. What shall Cordelia do? Love and be silent. These are very important lines. What shall Cordelia do? Love and be silent. She says कि मैं तो कुछ नहीं कह सकती. I cannot say so much जितना कि ये लोग कह रहे हैं. और I am unable to say anything. और
मेरा लव तो सिर्फ लव है और वो मेरे अंदर है, इट इज़ विद इन मी एंड आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट जस्ट लाइक दैट कि मैं टॉल क्लेम्स करती रहूं कि आई लव यू दिस मच एंड आई लव यू दैट मच, मैं इतना आपसे प्यार करती हूँ कि सितारों से ज़्यादा और चांद सूरज से ज़्यादा, ये सब मैं नहीं कह सकती। सो कॉर्डेलिया, उसका कैरेक्टर आप देखेंगे कि बड़ा सिंसियर और सिंपल है एंड शी सेज कि आई विल बी क्वाइट। मैं कैसे अपने लव को मेजरमेंट करूं into the sea and the sky and the moon and the stars and eyesight and honor और ये सब चीज़ें मैं तो नहीं कर सकती। I love my father as I love my father. There are no two ways about it. और इसी तरह से इसने बहुत अच्छी ये व्यू पोर्ट्रे किया कि ये सारी बात इन्होंने की कि कॉर्डेलिया जो है वो कंफ्यूज हो जाती है, परेशान हो जाती है कि मेरे पास तो वर्ड्स नहीं हैं, इतनी फ्लारी लैंग्वेज मेरे पास नहीं है, एंड हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस। ओके, देन लियर सेज, शी सेज, व्हाट शैल आई डू? लव एंड बी साइलेंट? आई कैन ओनली लव माई फादर इन माई हार्ट, एंड व्हेन इट इज टाइम टू शो माई लव आई विल डू दैट इन बैड टाइम्स, इन एडवर्सिटी, सो आई विल बी साइलेंट। वो पहले से ही सोच लेती है कि मेरे पास तो ऐसे अल्फाज हैं नहीं। सो लियर, और यहाँ पे देखें कि कॉर्डेलिया को गोनरल की चालाकी समझ आ रही है। शी इज़ वेरी कनिंग, वेरी वाइज ऑल्सो, कि उसने एकदम अपने फादर की वो एक तो पॉइंट था वो पकड़ लिया कि ओके, ही वांट्स फ्लैटरी, so I will flatter him. But Cordelia sees through her. वो सबसे छोटी है, लेकिन आप ये एंड में देखेंगे कि वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद, सबसे केयरिंग और सबसे लविंग निकलती है। Lear, of all these bounds, even from this line to this, with shadowy forest and with champagne wrist, with plenteous rivers and wide-skirted meads, we make thee lady to thine and Albany's issue. Be this perpetual. What says our second daughter, our dearest Regan, wife to Cornwall, speak. So he says कि ये सारी चीज़ें, उसने अब एक मैप खोला हुआ है। आप जब ड्रामा देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि ये मैप उसने खोला हुआ है और वो कहता है कि from these shadowy forests to these rivers and meadows and everything, this is all yours. So a large portion of his own kingdom he gives to Goneril. And then he comes back to Regan and he says ke Regan, a wife to Cornwall, now it is your turn, you should speak. Regan, Sir, I am made of the self same metal that my sister is. अब ये भी क्लेवर है, चालाक है, और ये कहती है कि जैसा कि मेरी बहन ने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही कह रही हूँ, that I agree with you and I agree with her, and prize me at her worth. In my true heart I find she names my very deed of love. Only she comes too short that I profess myself an enemy to all other joys which the most precious square of sense possesses. Now, what is she saying? She is saying that I agree with my sister that this is how much I love you, and but she comes too short. वो थोड़ा सा कम कह गई है। मैं इससे कुछ थोड़ा ज़्यादा कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई भी खुशी नहीं है without you. Myself an enemy to all other joys. I am an enemy to all other joys. ठीक है? Which the most precious square of sense possesses.
So she says कि I will be an enemy to all the other joys, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी में खुश होती हूँ. And find I am alone felicitate in your dear highness's love. वो कहती है कि सिर्फ मेरा ख्याल है कि मैं ही एक अकेली हूँ जो कि जिसको कोई और खुशी हासिल नहीं होती है सिवाय इसके कि वो अपने फादर के पास हो, और मुझे कोई और खुशी की ख्वाहिश नहीं है. And I am the only one to have this much of love for my father. Cordelia, again in an aside, she says, then poor Cordelia, and yet not so, since I am sure my love's more richer than my tongue. ये अंडरलाइन करें, ये बहुत important lines हैं. My love is more richer than my tongue. So she says कि कहने की बात नहीं होती है. लव जो है वो शो होता है, वो पता लग जाता है in times of trouble, in times of problems, and in times of care for each other. So she is the wisest of them all. In fact, King Lear से भी ज़्यादा वाइज है, क्योंकि King Lear ने तो बहुत ही शैलो सा एक टेस्ट रख दिया है अपनी बेटियों के लिए. King Lear, to thee and thine hereditary ever remain this ample third of our fair kingdom, no less in space, validity and pleasure than that conferred on Goneril. She says that, okay, very good, I am amazed, I am happy that you love me this much. और Goneril के accordingly ही उसको भी स्टेट का पोर्शन मिल जाता है. Now our joy, although the last, not least. You see, ये कॉर्डेलिया के लिए वो कह रहा है. Now our joy. King Lear सबसे ज़्यादा कॉर्डेलिया से अटैच्ड है, because she is the youngest and she is the most closest to him. So आपको पता होता है कि सबसे छोटा बच्चा जो फैमिली में है वो उससे आप बड़ा क्लोज होते हैं, उससे आप बहुत प्यार करते हैं, उसकी आप बड़ी केयर करते हैं. So same is the case here, that she is his joy. Although the last, not least. She says that you are the last one, लेकिन तुम सबसे कम नहीं हो, तुम least नहीं हो, you're the most. To whose young love the wines of France and milk of Burgundy strive to be interest. What can you say to draw a third more opulent than your sisters? Speak. She says, to whose young love the wines of France and milk of Burgundy strive to be interest. She says that French and the Lord of Burgundy both want to take your hand in marriage, and they are both interested in you. So you're most sought after maiden here. And what will you say to have the most opulent than your sisters? अब यहाँ पे देखें कि किंग लेयर को भी कुछ वर्डी फ्लारी लैंग्वेज की ख्वाहिश है कॉर्डेलिया से. ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा बोलेगी मेरे लिए, और मुझे सबसे ज़्यादा जो लव का कन्फेशन है वो ये सबसे ज़्यादा अच्छा करेगी. लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कॉर्डेलिया नोज़ द ट्रू सेंस ऑफ लव, और उसे पता है कि उसका दिल अपने फादर के लिए कितना उनकी तरफ है. सो ही इज़ एक्सपेक्टिंग सम वेरी मच फ्लारी लैंग्वेज. और इमेजिन कि किंग लेयर को गॉनरल और रेगन की फ्लैटरी समझ नहीं आई. सुपरफिशियल सी बात है, सरफेस के ऊपर जो कुछ उसको नज़र आ रहा है वो उस पर बिलीव कर रहा है. सो ही इज़ नॉट अ डीपर पर्सन. उसकी जजमेंट डीप नहीं है, उसकी जजमेंट फ्लॉड है, एंड दैट इज़ हिज हमार्शिया, द ट्रैजिक फ्लॉ इन किंग लेयर.
is his misjudgment. So he says that, okay, you speak and take the largest of the kingdom, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि तुम सबसे लार्जेस्ट जो है उसका वो जो पोर्शन है वो लोगी, एंड यू विल आउटवर्ड योर सिस्टर्स, whereas this is not true. यहाँ पे देखें कॉर्डेलिया कैसे स्टार्ट करती है, नथिंग माय लॉर्ड। वो इतनी डिस्गस्ट और अपसेट हो गई है अपनी बहनों से, पीछे देखें रेगन और गॉनरल से, कि ये क्या बातें कर रही हैं, ये तो सारी दुनियावी बातें कर रही हैं, और लव तो ये नहीं होता, लव तो एक दूसरे की केयर होता है, और उसको कहना बार बार उसके बारे में बोलना ज़रूरी नहीं होता, वो कभी ना कभी सर्कमस्टांसेस में शो हो जाता है। सो वो डिस्गस्टेड है विद हर सिस्टर, अनहैप्पी है, कहती है कि मुझे इनकी जो है वो शैलोनेस समझ में आ गई, उनकी ट्रांसपेरेंसी सामने नज़र आ गई, वो दोनों अपने कैरेक्टर में ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। सो कॉर्डेलिया वैसे ही अपसेट है कि ये क्या कह रही हैं, एंड अगेन सी के कॉर्डेलिया is also getting an idea how her father thinks, कि वो क्या समझता है, वो क्या, उसके अंदर इतना सेंस नहीं है कि वो वर्डिंग्स की डीपनेस को समझने की कोशिश करे। सो शी इज सीइंग अ न्यू फेस ऑफ हर फादर टुडे। सो अगेन उसके लिए भी ये इंफॉर्मेशन है बहुत सारी कि किस तरह से उसका फादर जो है वो बिहेव कर रहा है इन अ डिफरेंट मैनर। ही इज लाइक ही इज हंग्री फॉर वर्ड्स एंड प्रेजेस एंड फ्लैटरी, दैट शुड नॉट बी द केस, और ये नहीं होना चाहिए। तो कॉर्डेलिया के अंदर जहन में इस वक्त बहुत सारी कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, और शायद इसीलिए उसने उस मोमेंट में कुछ ना कहना जो था, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, नथिंग, कुछ ना कहना बेहतर समझा कि ये तो मुझे बात समझ में आ रही है कि मेरी बहनें क्या चाहती हैं। वो अपने फादर को फ्लैटर करके किंगडम्स हासिल करना चाह रही हैं, लैंड पोर्शन प्रॉपर्टी हासिल करना चाह रही हैं, एंड दे डोंट रियली लव द फादर। अगर उन्हें ये होता तो वो कहती कि यू नो फादर, वी आर गोइंग टू असिस्ट यू एंड यू कंटिन्यू रूलिंग द स्टेट। सो ये सारी चीज़ें कॉर्डेलिया के जहन में घूम रही हैं, और उसको अपने फादर और अपनी बहनों का एक नया चेहरा नज़र आया, और वो कंफ्यूज भी हो गई है, और वैसे भी उसके पास अपना लव के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे डबल मीनिंग्स, डबल आपको आइडिया मिल सकता है कि एक तो वो कंफ्यूज्ड है इसलिए वो कह रही है कि नथिंग, और दूसरा वो ये कह रही है कि मेरा लव किसी चीज़ से मेजर नहीं हो सकता, इट कैन बी मेजर टू नथिंग। सो देर आर टू वेज टू पुट दिस डायलॉग इन, एंड इमेजिन के शेक्सपियर ने कितना इंटेलिजेंटली ये सारा कुछ लिखा है, और हमको शेक्सपियर की हर लाइन में बड़ा सोच के, बड़ा समझ के, बड़े साइकी देख के इंडिविजुअल्स की चलना पड़ेगा, और हर चीज़ में डबल मीनिंग्स होंगी, असेसमेंट्स होंगी, आइडियाज़ होंगे, न्यू थिंकिंग होगी। सो नथिंग यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट मीनिंग रखता है। किंग लियर क्वेश्चंस हर, नथिंग, मिसेस व्हाट डू यू मीन? मतलब वो भी, उसकी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उसका ये क्या एक्सपेक्टेशन थी कि इन दोनों बहनों से ज़्यादा वो मुझे अपलॉड करेगी, मुझे ग्रेस करेगी। सो उसने नहीं किया। कॉर्डेलिया अगेन सेज नथिंग। सो 2 टाइम्स कंफर्म हो गया कि कॉर्डेलिया ने कुछ नहीं कहना अपने लव के बारे में, अपने फादर के साथ सिंसेरिटी के बारे में, because she will be a person who will be acting
as a daughter who actually loves her father. और उसको गॉनरल और रेगन का असल ट्रू फेस भी नज़र आ गया, एंड शी सरप्राइज्ड के द फादर डिड नॉट लुक थ्रू द एल्डर डॉटर्स, कि वो समझ नहीं सका कि ये क्यों इस तरह कह रही हैं, क्यों मुझे फ्लैटर कर रही हैं. सो अगेन दिस कंफ्यूजन इन हर माइंड. एंड बेसिकली आप ये देखें कि शुरू से उसने ये कह दिया था कि आई विल नॉट बी एबल टू से एनीथिंग. मैं अपना लव किसी भी चीज़ से, किसी भी यार्ड स्टिक से मेजर नहीं कर सकती. King Lear says, nothing will come of nothing, speak again. See this. Again, important lines, and these should be quoted when you are writing the character sketch of King Lear. ये कॉर्डेलिया को एक चांस दे रहा है और वो कहता है कि बोलो, कहो, टेल मी, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग. अच्छा, नथिंग का उसने लिटरल मीनिंग लिया है. अगर आप ये कहें कि आई लव माई फादर टू नथिंग कैन बी कंपेयर्ड फॉर विद माई लव फॉर माई फादर, तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है. लेकिन नथिंग की लिटरल मीनिंग कुछ भी नहीं है, नथिंग, सो इनसिग्निफिकेंट. सो ही थिंक्स, उसने लिटरल मीनिंग ली है नथिंग की, और उसने कहा है कि ये मेरा लव जो है, कॉर्डेलिया का लव मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट है. शी डजंट लव मी, शी डजंट केयर फॉर मी. उसने ये असेस किया, और कितना गलत असेसमेंट है. But he is still giving her a chance. She is the youngest and she is the joy of his life. So he gives her a chance. Cordelia says, unhappy that I am, I cannot heave my heart into my mouth. I love your majesty according to my bond, nor more nor less. So ये lines important है. She says that I am unhappy. How she is unhappy? To see the frivolity of her sisters, to see the shallowness of her sisters, and to see that the king has not been able to look through the daughters and he takes them for their own word. और उसके अंदर किंग लेयर में भी डीपनेस ऑफ थॉट नहीं है. सो इसलिए वो अनहैप्पी है कि मेरी बहनें ट्रूली अपने फादर को लव नहीं करती, फ्लैटर करके उससे प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं. My heart into my mouth, I cannot heave my heart into my mouth. She says कि मेरे दिल में जो बात है वो ज़बान पे नहीं आ सकती. So very nicely, very sweetly said कि मेरा दिल जो आपके लव के लिए प्योर है, उसकी प्योरिटी मेरी ज़बान पे नहीं आ सकती. बिकॉज फिर ज़बान पे अगर जो चीज़ आ जाती है तो वो फिर पराई हो जाती है, वो और हो जाती है. सो हेयर शी सेज के मेरा दिल जो कुछ भी कह रहा है वो मेरी ज़बान बयान नहीं कर सकती, और मैं उन फीलिंग्स को ज़बान पे ला के कम नहीं कर सकती, छोटा नहीं कर सकती. उनका जो मैग्नीट्यूड है उसको छोटा नहीं किया जा सकता. सो मैं अपनी दिल की बात अपनी ज़बान पे नहीं ला सकती. एंड शी सेज आई लव योर मैजेस्टी इवन नाउ. इस बात से भी माई हार्ट इनटू माई माउथ, इस बात से भी किंग लियर को समझ नहीं आई. उसको पता ही नहीं चला कि उसकी बेटी कितनी बड़ी बात कह रही है. ठीक है. देन शी सेज आई लव योर मैजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नॉर मोर नॉर लेस. अगेन
शी सेज कि आई लव यू अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू अ फादर डॉटर रिलेशनशिप, उससे ज़्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको प्लीज़ ज़रूर कोट कीजिएगा व्हेन यू आर डूइंग कॉर्डेलियाज कैरेक्टर स्केच। तो एक डॉटर फादर का रिलेशनशिप होता है जिसमें कि एक लव, केयर, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। डॉटर्स अपने फादर की अनोयंस से डरती भी हैं और उनको खुश करने के लिए बहुत कुछ करती हैं। ये एक बॉन्ड होता है विच इज़ नॉट विद द मदर्स। और आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, देखा होगा अपनी सराउंडिंग्स में, अपनी फैमिलीज़ में, ये ज़रूर देखिए कि बेटियां जो हैं वो फादर से ज़्यादा क्लोज़ होती हैं बिकॉज़ वो उनको आइडियलाइज़ करती हैं। वो ये देखती हैं कि हमारे फादर हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमें लव देते हैं, हमें केयर देते हैं। हमारे फादर हमारे सामने होंगे, आगे होंगे, तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। इवन मदर्स जो हैं वो कुछ नहीं कह सकती अगर फादर जो है वो बेटी को प्रोटेक्ट कर रहा हो, पैम्पर कर रहा हो, उनकी केयर कर रहा हो। तो ये एक बड़ा यूनिक, बड़ा खूबसूरत सा बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड की जो इम्पोर्टेंस है वो कॉर्डेलिया को पता है। वेयरएज गोनरल और रीगन जो हैं उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक लाइफ्स गुजारी हैं। कॉर्डेलिया किंग लियर से सबसे क्लोज है, सबसे छोटी है, सबसे पैम्पर्ड है, सबसे प्यारी है। तो उसका बॉन्ड किंग लियर के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड यू विल सी एट द एंड कि ये बात बहुत ज़्यादा ट्रू है। तो यही चीज़ वो कहती है कि बॉन्ड है मेरा आपके साथ एज अ फादर डॉटर रिलेशनशिप, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, उसको कोई नहीं हिला सकता। और वो इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी है, आखिर में भी है। ऑल इटर्निटीज़ के लिए मैं आपकी बेटी हूँ। सो ये बॉन्ड कितना बड़ा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। और मैं उससे ज़्यादा भी नहीं आपको लव कर सकती और उससे कम भी नहीं कर सकती। उससे कम करने की तो गुंजाइश ही नहीं है और उससे ज़्यादा की आगे लिमिट कोई नहीं है कि मैक्सिमम जो लव है मेरा वो अपने फादर के लिए जितना भी होना चाहिए उतना है। आई हैव रीच्ड द कल्मिनेशन ऑफ माई लव फॉर माई फादर। सो ये बात एक समझने वाली है कि वो ये कह रही है कि जो हमारी रिलेशनशिप है उसमें मैंने हाईएस्ट पीक ऑफ फादर्स लव को टच कर लिया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं और इससे कम कुछ नहीं। सो बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल और बड़ी सिंपल बात इसने की, बट किंग लियर ने इसको कुछ और ही अंदाज में लिया। उसका मूड आज कुछ और है। मे बी ही इज़ इन द मूड ऑफ लिसनिंग टू फ्लैटरी, कि वो अपनी तारीफ़ें सुनना चाहता है। और आज गोनरल और रीगन ने तारीफ़ कर दी, कॉर्डेलिया पीछे रह गई, कॉर्डेलिया ने सच बोल दिया। सो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया ऑफ द प्ले और इसको आप साथ साथ इसको एंजॉय भी करें और देखें कि शायद आपके इर्द गिर्द इस तरह के कैरेक्टर्स मौजूद होंगे, ज़रूर होंगे। किसी की फैमिली में कोई इतने मटेरियलिस्टिक लोग, कोई ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं करते, खुदा न खास्ता उनको कोई तकलीफ़ पहुंचाते। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ का ड्रामा है और इस तरह के लोग आपको प्रैक्टिकली लाइफ में मिलेंगे। और कॉर्डेलिया जैसे सिंसियर, लविंग, केयरिंग, गिविंग और अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले लोग भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं और इसीलिए ये वैरायटी के साथ ये दुनिया जो है वो चल रही है। So according to the bond, which is very strong, which is great and which has a lot of power, so उसने गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा। और मैं अगर किंग लियर की जगह होती तो
मैं बहुत उसको अप्रिशिएट करती, बहुत एडमायर करती। बट ऑब्वियसली किंग लियर्स मिसजजमेंट, मिसकैलकुलेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके जो है हमार्शिया ट्रैजिक फ्लॉ आ रहा है। किंग लियर, हाउ कॉर्डेलिया, mend your speech a little lest it may mar your fortunes। वो कहता है कि अपनी स्पीच को मेंड करो, बेहतर करो, इसमें और कुछ फ्लारी लैंग्वेज डालो। उसका मतलब ये है कि और कुछ फ्लैटरी थोड़ी सी करो, ये ना हो कि तुम्हारी फॉर्च्यून ख़त्म हो जाए, तुम्हारी जो स्पीच है वो इतनी कम हो कि तुम्हारी फॉर्च्यून भी उतनी ही कम हो जाए, और इट विल किल योर गुड फॉर्च्यून, कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ भी ना दूँ। तो ये आप तुम्हारे लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज हो जाएगा। सो यू मस्ट मेंड योर स्पीच हियर। कॉर्डेलिया अगेन शी सेज, उसके जहन में वही सब चीज़ें चल रही हैं कि ये क्या हो रहा है, समथिंग इज़ नॉट राइट, इट इज़ गोइंग रॉन्ग एंड माई फादर इज़ नॉट जजिंग करेक्टली, वो ठीक तरह से जजमेंट उनकी नहीं हो रही है, और ये सब चीज़ें जो हैं वो उसे समझ आ रही हैं बहुत अच्छी तरह, इसलिए उसका दिल और जहन जो है वो बहुत ही ट्रबल में है। कॉर्डेलिया, गुड माई लॉर्ड, you have begot me, bred me, loved me. He says that I am your daughter by blood, by birth. आपने मेरी ब्रीडिंग की है, मुझे अच्छी लाइफ दी, और आपने मुझे लव किया, you loved me a lot। ठीक है, जैसे वो उसको कहता है आर जॉय, तो कॉर्डेलिया जो है वो किंग लियर का जॉय रही है। एंड ही सेज कि कॉर्डेलिया से ज़्यादा मुझे कोई लव नहीं कर सकता, उसका ये क्लेम था, लेकिन अब वो क्लेम ख़त्म होता जा रहा है। आई रिटर्न दोज ड्यूटीज़ बैक एज आर राइट फिट। वो कहता है कि मैं ये ड्यूटीज़ वापस करता हूँ जैसे कि वापस करने का हक है। सो वेरी नाइसली रिटन बाय शेक्सपियर। कॉर्डेलिया ये सारा कुछ कह रही है कि मैं ये ड्यूटीज़ उसी तरह से वापस करती हूँ। एज अ डॉटर आई लव यू, एंड एज यू हैव टेकन केयर ऑफ मी आई विल टेक केयर ऑफ यू। ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड हैं, और जो जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, आपकी केयर करना, आपको लव करना, आप अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू माई रिलेशनशिप विद यू, और उसी तरह से मैं आपको ओबे करूँगी, आपको लव करूँगी और आपकी केयर करूँगी। एंड इन दीज शी इज़ एब्सोल्युटली जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन वो बात कर रही है, इसमें कोई फ्लैटरी नहीं है, कोई डबल मीनिंग्स नहीं है, वो बड़ी सिंसियरली सब कुछ कह रही है। ओबे यू, लव यू एंड मोस्ट ऑनर यू। ठीक है, वो कहती है कि मेरी ओबीडियंस है आपके लिए, मैं ओबे करूँगी आपका हर कमांड, आपकी हर बात को मैं ओबे करूँगी। एंड आई विल लव यू, ऑफ कोर्स यू हैव लव्ड मी, एंड नाउ इज़ द टाइम दैट आई रिटर्न दैट लव। और सबसे ज़्यादा ये कि मैं आपको ऑनर करूँगी, आपकी बात मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगी। मीनिंग कि इफ़ यू से, इफ़ यू आस्क मी टू गिव माई लाइफ, आई विल ऑल्सो डू दैट। आई विल गिव माई लाइफ फॉर योर लव एंड फॉर योर केयर। सो इससे ज़्यादा बड़ी कोई क्लेम नहीं हो सकता, और कॉर्डेलिया इज़ सेइंग ऑल दीज थिंग्स वेरी वेरी केयरफुली, और बड़ी अच्छी तरह से वो ये बात कर रही है, और सब कुछ क्लियर है। ऑनर, लव, ड्यूटी, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग इज़ देयर। उसे सारी बातें कह दी हैं, लेकिन ये किंग लियर का कमाल है कि वो
समझ ही नहीं पा रहा। Why have my sisters husbands if they say they love you all? इसमें अब इसने बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात की कि मेरी जो बहनें हैं उनके हस्बैंड्स क्यों हैं। अगर वो ये कहती हैं कि वो आपसे सबसे ज़्यादा लव करती हैं तो उनको हस्बैंड्स की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी सिंसेरिटी, अपना केयर किसी और तरफ भी बांट दिया है। ऑफ कोर्स यू सी, ये बड़ी एक नॉर्मल सी बात है कि जब बेटियों की शादियां हो जाती हैं तो उनके हस्बैंड्स उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, वो उनकी ज़्यादा केयर करती हैं, वो अपने घर वालों की इतनी केयर नहीं करती। सो ये तो एक फैक्ट है। दिस इज़ हाउ शी सेज कि मेरी बहनें जो हैं उनकी तो शादियां हुई हुई हैं, उन्होंने हस्बैंड्स की क्यों चॉइस की। और फिर वो कहती हैं कि वो आपसे सबसे ज़्यादा लव करती हैं। फिर तो उनका लव डिवाइड हो गया ना। अब फादर की भी केयर करनी है, उसकी भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स देखनी है, और हस्बैंड की भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स देखनी है। सो वो यू आर टॉर्न बिटवीन टू कमिटमेंट्स, एक फादर की कमिटमेंट और एक हस्बैंड की कमिटमेंट। तो आप कैसे उसको पूरा कर सकती हैं? अगर आप फादर की तरफ ज़्यादा कमिटेड होंगे तो हस्बैंड नाराज़ हो जाएगा, हस्बैंड की तरफ ज़्यादा कमिटेड होंगे तो फादर नाराज़ हो जाएंगे। सो ये बैलेंस इन्होंने कैसे रखा हुआ है? इसका मतलब है कि इनका लव इतना प्योर नहीं है। वो भी तो एक बॉन्ड के अकॉर्डिंगली ही आपको लव कर रही हैं। वेरी सेंसिबली सेड बाय कॉर्डेलिया, बट अलास किंग लियर डज नॉट अंडरस्टैंड दिस। ये उसको समझ ही नहीं आती बात। सो शी सेज कि वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हैं और उन ड्यूटीज़ में फादर की लव, केयर और ऑनर की भी ड्यूटी शामिल है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा नहीं है। वो अपने हस्बैंड्स की भी केयर कर रही हैं, वो अपने घरों को भी देख रही हैं, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी की केयर भी कर रही हैं। सो हैप्पीली व्हेन आई शैल वेड, that Lord whose hand must take my plight shall carry half my love with him, half my care and duty. Sure, I shall never marry like my sisters. Logical. वो कह रही है कि मेरी जब शादी होगी तो the person who is going to love me, who is going to marry me, will take half my love. उसका आधा लव, मेरा जो आधा लव है वो उसकी तरफ चला जाएगा, मेरी आधी केयर और आधी ड्यूटी उसकी तरफ चली जाएगी। शी इज वेरी राइट इन दिस सेंस। तो क्यों ना मैं शादी ही ना करूं। आई शैल नेवर मैरी। ठीक। To love my father all. All meaning कि अगर मुझे मैक्सिमम अपने फादर को लव करना है तो फिर मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। I should not marry because then my love will be divided. So you see, ये इसकी स्पीच बहुत ही क्रिटिकल है और उसने अटैक भी किया है अपनी बहनों पे। वाई हैव माई सिस्टर्स हस्बैंड्स, उनके पास हस्बैंड क्यों है? इसका मतलब है उनका लव डिवाइडेड है। तो वो जो कुछ भी उन्होंने ऊपर कहा है वो सच नहीं है। शी इज ट्राइंग टू टेल हिम, शी इज ट्राइंग टू मेक हिम सी थ्रू देम, एंड शी सेज कि when I get married my love will also be divided into half. इसलिए मुझे शादी ही नहीं करनी, so that I can love my father completely, कि मेरा लव, मेरी केयर, मेरी ऑनर, मेरी ड्यूटी अपने फादर के लिए हो। King Lear, but goes thy heart with this? वो कहते तुम अपने दिल से ये बात कह रही हो? कि उसने बाकी सारी बातें नहीं सुनी, उसने कैच सिर्फ ये कर लिया नथिंग को, और नथिंग की भी लिटरल मीनिंग को कैच कर लिया।
तो उसके जहन में यही बात रही कि ये तो मुझे फ्लैटर नहीं कर रही है, ये मेरे लिए क्लेम्स नहीं कर रही है, ये तो मुझे बड़ी प्रैक्टिकल सी बातें बता रही है कि मैं उतना ही आपसे लव करती हूँ जितना कि एक बेटी को अपने फादर से करना चाहिए, और अगर जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा हाफ लव उधर चला जाएगा। बाकी बातें जो गहरी बातें हैं, जो इंटेलिजेंस की बातें हैं, जो विजडम की बातें हैं, वो चीज़ें किंग लियर को समझ नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रही। His ears are only attuned for flattery right now. वो सेंसिबल बात सुनने के मूड में ही नहीं है इस वक्त। सो अगेन वो ये कहता है कि तुम अपने दिल से ये बात कह रही हो। कॉर्डेलिया सेज आई गुड माई लॉर्ड, मीनिंग यस, मैंने दिल से ये बात कही है। किंग लियर सेज so young and so untender. Untender. Very important word for King Lear to use for Cordelia. Cordelia सबसे टेंडर, सबसे लविंग, सबसे केयरिंग है, और किंग लेयर की मिस जजमेंट अनटेंडर, अनलविंग, अनकेयरिंग की है। वो कहते हैं कि तुम इतनी छोटी, इतनी यंग हो और इतनी बिटर, अनटेंडर, इतनी सख्त मिजाज, इतना क्रूअल तुम्हारा दिल है। हालांकि आप यहाँ देखें कि उसका दिल बहुत बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है, एंड शी हैज़ बिन एबल टू जज हर सिस्टर्स। उसने अपनी बहनों को बड़ा अच्छा जज कर लिया है। और उसका जवाब देखें, सो यंग माई लॉर्ड एंड ट्रू। सो शी सेज आई एम यंग, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच्चाई बयान कर रही हूँ। टेम्पो जो है वो बिल्डअप होता जा रहा है, और आप देखें यहाँ पे समझदारी की बातें, ट्रू बातें, सच्चाई की बातें सिर्फ कॉर्डेलिया कर रही है, बाकी सारे लोग अपने अपने इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं। किंग लियर, अब यहाँ पे ये किंग को गुस्सा चढ़ जाता है। एक और चीज़ किंग लियर के कैरेक्टर में है कि ही इज़ वेरी मूडी, ही इज़ वेरी विम्सिकल, एंड ही इज़ वेरी लाउड, एंड ही बिकम्स एंग्री वेरी सून, ही कैन नॉट कंट्रोल हिज टेम्पर, और उसको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा जो है, एंगर जो है, दैट इज़ अनदर वन ऑफ द डेडली सिंस। तो गुस्से में तो आपको कोई भी चीज़ जो है वो वाइज विजडम से आप काम नहीं ले सकते। गुस्सा तो बिल्कुल हराम है और गलत है, क्योंकि गुस्से में आप गलत काम कर जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, और दिस इज़ व्हाट हैज़ happened here in King Lear. So the king is saying, let it be so, thy truth then be thy dower. यानी कि अच्छा ठीक है, अब तुम सच्चाई इतनी बोल रही हो, तुम इतना सच बोलती हो, तो यही तुम्हारी डावरी है, बहुत काफ़ी है, और अब आप इसी से खुश रहो और इसी से काम चलाओ, और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। तुम्हारा ट्रूथ जो है वो तुम्हारे लिए बहुत काफ़ी है। फॉर बाय द सेक्रेट रेडियंस ऑफ द सन, द मिस्ट्रीज ऑफ हीकेट एंड द नाइट, बाय ऑल द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्ब्स, फ्रॉम होम वी डू एग्जिस्ट एंड सीज टू बी, हेयर आई डिस्क्लेम ऑल माई पैटर्नल केयर, propinquity and property of blood, and as a stranger to my heart and me, hold thee from this forever. As a stranger to my heart and me. ये वो कॉर्डेलिया को कह रहा है. And he is swearing by the sun and the Hecate and all the orbits of the night. हर चीज़ किंग लियर में आप ये भी देखेंगे कि इनकी जो स्वेरिंग है, इनकी जो प्रॉमिसिंग है वो बड़ी हाई
लेवल की होती है, और वो गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड नाइट्स एंड डेज और इन सब की को जो है वो अपना जो है वो अलाय बना लेते हैं, और दे स्वेयर बाय द सन एंड दे से कि जितना भी सूरज की चमक है, जितनी भी रात का अंधेरा है, ये सब चीज़ें गवाह हैं that I have disclaimed all my paternal care for this girl. So he is banishing her. And as a stranger to my heart and me, hold thee from this forever. So ये बड़ी इमोशनल एक स्पीच है, और प्रैक्टिकल किंग लियर इसमें नहीं है, बल्कि बड़ा इमोशनल हुआ हुआ है, और कहता है कि ये मैं अपनी बेटी को डिस्क्लेम करता हूँ. And it is a stranger to my heart and me, hold thee from this forever. The barbarous Scythian, or he that makes his generation messes, to gorge his appetite, shall to my bosom be as well neighboured, pitied, and relieved, as thou my sometime daughter. So ये analogy इसने ड्रॉ की है Scythian से, and she says that इन सब चीज़ों की स्वेयर करता है कि मैंने अपनी बेटी को अपने से अलग कर दिया. She has no place in my heart and in my kingdom. So this is what he has been saying. Very powerful speech. और आप ये नोट कर रहे होंगे कि इसमें किंग लियर का कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है उसकी मिस जजमेंट पे, और जो आपका कॉर्डेलिया है वो कितने केयरफुली, कितने केयर से ये सारी बातें जो है वो कह रही है. सो ही banishes her. She has been true in her feelings for him. It's only that the father did not understand, and he misjudged her, and he misjudged his two elder daughters. और यहाँ पे अभी इस वक्त हम स्टॉप करते हैं. We will continue in the next lecture, and I hope you have your copies of King Lear with you. और ये लेक्चर के साथ साथ आप अपने जो टेक्स्ट है उसको देखते जाएं, उसको पढ़ते जाएं, और जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल स्टडी इज़ वेरी वेरी हैंडी, बड़ी यूज़फुल है, लेकिन टोटली उस पर रिलाई ना करें. और उसमें वर्ड्स मीनिंग्स भी आपको मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, कैरेक्टर स्केचेस भी मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं पता चलेगी कि हर सवाल का जवाब जो है वो आपको टेक्स्ट की कोटेशन के साथ प्रूफ करना होता है. और इंग्लिश लिटरेचर का जो एग्ज़ाम है और जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने का एक ख़ास तरीका होता है. सो उसमें कोटेशन बहुत सारी आप डालते हैं, और उससे आप टेम्पो बिल्डअप करते हैं आंसर की, और उसी तरह से आप कैरेक्टर स्केच को बिल्डअप करते हैं. सो वी स्टॉप हियर नाउ फॉर द टाइम बीइंग, एंड वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विद केंट कमिंग इन. केंट जो है वो किंग लियर का बहुत क्लोजेस्ट एक उसका लीज है, एंड ही इज़ गोइंग टू एडवाइज हिम, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. And till then, take care of yourself, और अपना टेक्स्ट अपने पास रखिएगा. See you inshallah in the next lecture. Allah Hafiz.